Zahra and Aisha myself. So first of all, what is our topic? So our topic is the game theory, and we will discuss the game theory definition, history of game theory, terms, assumptions, limitation, methods of game theory, Nash equilibrium, multiple Nash equilibrium, dominate strategies. Game theory is business word, improvement in decision making, day-to-day activities, benefits, prisoners, and conclusion. So what is the game theory? Basically, game theory is a science of strategy. Like it is a mathematically construct with a clear set of concept assumption of resulting of their theorems. And game theory is not a game. It's a technique which is used in the business to find out that what type of strategy competitor is following. According to this slide, game theory is a theoretical framework for the conceiving social situation among competing players. In some respects, game theory is a science of strategy, or at least the optimal decision making of independent and competing actors in a strategic setting. So, at the end, we conclude that basically game theory is used by a business organization to defeat their competitors. The next is the history of game theory. Game theory, in the form known as the economics, social scientists, and biologists, was given its first general mathematical formulation by John von Neumann and Oscar Morgenstern in 1944. Basically, these are the terms of game theory. The first is game, second is pairs, third is payoff, and fourth is equilibrium. So, what is a game? Basically game is a set of circumstances that has a result dependent on the action of two or more than decision makers. So what are the decision makers? Decision makers are the players. So basically we will use a term of players in a game theory, but participants are not like a hockey or cricket player. Players mean is a decision maker who are going to make decision or best decision. Basically, they call the players. The next is what is the payoff? Payoff is like a player that receive from arriving at particular outcomes. And the fourth is equilibrium. Equilibrium is the point in a game where both players have made their decision and outcome is reached. The next is the categories of game theory. There are two categories of game theory. First is zero sum, and the second is non-zero sum. So, what is a zero sum? So, zero sum is like a loss of one and gain of another. According to this slide, a zero sum game is a mathematical representation of situation in which each participant gain or loss of utility is exactly balanced by the losses or gain of the utility of the other participants. Then next is non-zero sum. Non-zero sum, there can be a net gain or net loss. So according to this slide, non-zero sum is describe a situation in which the interacting parties aggregate gains and loss can be less than or more than a zero. The next is assumptions of game theory. There are five assumptions of game theory. As you can see on the slide, the first is the number of players means competitor infinite. The second is all players act rationally and intelligently. The third is each player has a defined course of action. And fourth is there is conflict of interest between the players. And the fifth is the rules of play are known to all the players. And what are the limitations of game theory? You can see three limitations on this slide: number of players, general rules, and adequate the knowledge. So what are the limitations? First is as the number of players increase the actual business, then game theory become more difficult. The second is it is simply provides a general rules of logic, not to winning strategies. Third is there is much uncertainty in actual field of business which cannot be considered in game theory. And fourth is business don't have adequate knowledge for the game. I mean businessmen don't have adequate knowledge for the game theory. And there are four type of methods which is using in a game theory. The first is minimax and maximum principle. It is also called a pure strategy. The second is
mixed strategy or odds method. Fourth is graphical method. Fifth is a domain method. So, mixed strategy, graphical method, and domain method, they also called a mixed strategy. Uh, so, what is a pure strategy or mixed strategy? So, pure strategy is when a player individual like chosen one of two preference but not mix them. And what are the mixed strategy? Mixed strategy is when individual chooses either of these actions with some probabilities. What are the probabilities? Probabilities are chances of something. So I will explain these minimax and maximum principles and max strategy method and graphical method after ending of my presentation. So first, minimax principle, minimax and max principle, maximum principle. So minimax is a decision rule used in artificial intelligence, decision theory, game theory, stats, and philosophy for minimizing the possible loss for a maximum loss. When dealing with gain, it is referred to as maximum to maximize the minimum gain. These are the basic graphical representations you can see in this slide. Then अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो उर्दू में करने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को समझ आ सके कि गेम थ्योरी बेसिकली है क्या चीज़। तो पहले आपको एक शॉर्ट से एक ओवरव्यू दे रहा हूँ गेम थ्योरी के बारे में ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर समझ आ सके। एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं बिकॉज गेम थ्योरी बहुत ह्यूज टॉपिक है जिसके साथ एग्जाम्पल्स होंगी तो हमें प्रॉपरली समझ आ सकती है। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि एक गेम है, हम एक गेम दो प्लेयर्स होते हैं, आप एक गेम खेलते हैं उसमें दो प्लेयर्स होते हैं और मोर देन टू प्लेयर्स भी हो सकते हैं, वो गेम कर रहे हैं। गेम में होता क्या है, ये रूल होता है कि किसी एक बंदे को उसमें विन करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक बंदे ने अगर विन करना तो वो क्या होगा कि एक बंदा अगर विन करेगा तो ऑब्वियसली बात है दूसरा विन नहीं करेगा, दूसरा हारेगा। तो लेकिन अब इस गेम थ्योरी को हम उस कॉमन गेम के साथ नहीं अटैच करते। गेम थ्योरी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पार्टीज के अंदर लाइक डिसीजन मेकर्स के दरमियान होती है। हम एक बहुत सिंपल एक मेथड या बहुत सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कोक एंड पेप्सी। तो देखें, कोक एंड पेप्सी जो है वो बोथ आर टू कंपनीज और वो दोनों डिसीजन मेकर्स हैं। एग्जांपल के साथ फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोक कंपनी, एक सिंपल एग्जांपल है, एक जर्नल एग्जांपल है, कोक कंपनी अगर अपनी 10 बॉटल सेल कर रही है तो उसका मतलब ये है कि 10 बॉटल जो पेप्सी ने बनाई है वो सेल आउट नहीं हो रही है। तो मीन्स ये कि वो 10 बॉटल कोक की प्रॉफिट है और वो जो सेल पेप्सी की नहीं हो रही वो 10 बॉटल उनका लॉस है। तो अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी मेथड के साथ हम देखेंगे। जो हमने मेथड यहाँ स्टार्ट में पढ़े, मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल, मिक्स स्ट्रेटेजी और ऑड मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। बेसिकली बहुत से मेथड है जिनके थ्रू हम लोग जो है गेम थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं, बट हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम सिर्फ 3 मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। पहला मेथड आता है हमारे पास मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल। जैसे हम लोगों ने जीरो सम के अंदर एक चीज तो पढ़ा था कि एक जो कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है वो ऑब्वियसली बात है दूसरे का लॉस होगा। तो इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो ये हमारा बेसिकली जितने भी मेथड यूज हो रहे हैं इसमें हमें थोड़ा सा अपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं, जो आईकॉम के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपने मैथ्स को थोड़ा सा अपने माइंड में दोबारा लाना पड़ेगा, जिसमें हमने मैट्रिसेस पढ़े थे, कोरिस्पॉन्डिंग मेथड्स पढ़े थे, बेसिकली सब वही चीजें। मुश्किल जरूर है मगर इनके साथ हमें एक वैल्यू ऑफ गेम यानी कि उनका जो प्रॉफिट की रेंज होती है कि कितनी बॉटल, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि कोक अगर 10 बॉटल सेल करी तो उसका वो प्रॉफिट है और पेप्सी अपनी 10 बॉटल सेल नहीं करी उसका वो लॉस है। तो ये 10 की जो एक वैल्यू है इससे कहते हैं वैल्यू ऑफ गेम। इसको निकालने के लिए बेसिकली मेथड यूज होते हैं। तो पहला मेथड है मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल मेथड। आप इसके अंदर ये कर्सर को अगर आपको शो हो रही हो तो आप इसके साथ बहुत इजीली इसको समझ सकेंगे कि कर्सर आपको बताना क्या चाह रही है। बेसिकली जो कर्सर में आपको बताया गया कि जो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक ये जो कॉलम फॉर्म में शो हो रहा है ये ए कंपनी की जो स्ट्रेटेजीज हैं जिनका नाम हमने A1, A2 एंड A3 के नाम से दिया है।
और जो ऊपर टॉप पे शो हो रही है ये B1 एंड B2 के नाम से जो चीज है वो शो हो रही है स्ट्रेटजीज के नाम से। पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ए जो मिनिमैक्स स्ट्रेटजी है, ये ए को हम मिनिमैक्स स्ट्रेटजी क्यों कहते हैं। बेसिकली ए जो होता है ये क्या चाहता है कि इसका जो प्रॉफिट है, जैसे कोक कंपनी चाहती है उसका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन हो, लेकिन बी चाहती है कि उसका लॉस जो हो रहा है वो कम से कम हो। तो ये इनके दरमियान एक बेसिकली फाइट है। तो क्या करेगा मिनिमम स्ट्रेटेजी में बी वो चीज ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा जो ए स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो कर रहा है, और ए उसका विनिंग। बेसिकली जो हमने लिमिटेशंस की बात की या हमने एजम्पशंस की बात की, तो उसमें वो यही चीज बताना चाह रहे थे कि अगर ए कंपनी लॉस कर रही है, बेसिकली लॉजिक्स है, ये कोई विनिंग गेम नहीं है। इन लॉजिक को यूज की जाती है कि दूसरा कंपनी जो है दूसरा बंदा कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जो उसकी विनिंग स्ट्रेटेजीज बन रही हैं। तो इसके अंदर हम लोग सिंपली टाइम को जाया किए बगैर अगर इसकी तरफ हम आते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि मिनिमम स्ट्रेटेजी में ए पहले करेगा कि अपनी जो मिनिमम ए स्ट्रेटेजी के अंदर, जो देखें A1 के अंदर 9 और 2, इसमें वो देखेगा इनका मिनिमम लॉस क्या हो रहा है या मिनिमम इनका प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो आप ये देखेंगे इसके बिल्कुल सामने इनका मिनिमम 2 है। सेम लाइक A2 के अंदर मिनिमम हमारा क्या आ रहा है, 8 के अंदर 8 है और 6 है, तो इसका मिनिमम आ रहा है 6। एंड द थर्ड आ रहा है 6 और 4, तो इसका हमारा मिनिमम क्या है 4। सेम लाइक मिनिमैक्स में हम उसके नेम से पता चल रहा है, पहले मिनिमम लाइक कम फिर ज्यादा। अब जो उन्होंने मिनिमम सिलेक्ट कर लिए हैं उसमें से वो अब मैक्सिमम सिलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर मैक्सिमम हमारे पास 2, 6 एंड 4 है, तो इसका मैक्सिमम हमारे पास क्या है 6। सेम लाइक अब ए बी यूज कर रहा है, बी यूज कर रहा है स्ट्रेटेजी मैक्स मिन की। मैक्स मिन स्ट्रेटेजी का मतलब है पहले वो मैक्सिमम अपना लॉस देखेगा, उसके बाद उसमें से वो मिनिमम सिलेक्ट करेगा उसका मिनिमम क्या है। तो उसका मैक्सिमम इसके अंदर क्या चीज आ रही है, अगर आपको घर से शो हो रही हो, B1 में पहले 9 है, फिर 8 है, फिर 6 है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है हमारे पास 9। देन B2 के अंदर अगर हम देखें तो 2 है, 6 है एंड देन 4 है, तो इसका मैक्सिमम हमारे पास क्या है 6। अब हमने उनकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, ए की स्ट्रेटेजी के मुताबिक, मिनिमैक्स के मुताबिक पहले हमने मिनिमम सिलेक्ट किया, उसके बाद हम उसमें मैक्सिमम को सिलेक्ट करेंगे, तो मैक्सिमम उसका आएगा 6। और बी में सबसे पहले हमने मैक्सिमम सिलेक्ट किया और उसके बाद हम उसमें मिनिमम सिलेक्ट करेंगे कि 9 और 6 में मिनिमम कौन सा है। तो इन दोनों के बाद हमारे पास प्लेयर बी वाली साइड पे भी और प्लेयर ए वाली साइड, दोनों की स्ट्रेटेजी में हमें इनके बेसिक पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं जो इसकी डेफिनेशन को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों साइड पे हमें जो वैल्यू ऑफ गेम मिली है वो हमें 6 के नाम से वैल्यू ऑफ गेम मिली है, जो आपको येलो जो है वो बॉर्डर के अंदर नजर आ रही है। तो इससे एक आइडेंटिफाई हो गया कि इनकी जो वैल्यू ऑफ गेम है वो है 6। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताई थी कि कोक एंड पेप्सी की उन्होंने कहा कि हमें 10 बॉटल हमने सेल आउट कर दी हैं, और उन्होंने कहा था कि हमारे 10 बॉटल सेल आउट नहीं हुई। तो उनको पता चल गया कि आया बी को पता चल गया कि आया कौन सी स्ट्रेटेजी में देखूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट गेन हो और दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली लोअर हो जाए या वो पार्टी जो है ऑटोमेटिकली डाउन पोजिशन में चली जाए। नेक्स्ट आता है मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड। ये थोड़ा मेथड चेंज है और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को माइंड में रखना है, जिस जगह पे हमें प्योर या एक क्लियर वैल्यू ऑफ गेम नजर नहीं आएगी हम उस जगह पे मिक्स स्ट्रेटेजी मेथड यूज करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें फिर कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसी माइंड की तरफ जाना पड़ेगा, उसको अपने माइंड में रिव्यू लाना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगी इस चीज की। क्योंकि बेसिक मेथड्स है ये फॉर्मूले के तौर पे भी किए जा सकते हैं, बट फॉर्मूला बहुत कम्प्लेक्स हो जाएंगे तो वो हमें समझ नहीं आएंगे, तो सिंपल हम एक लॉजिक यूज करेंगे जिससे हमें अंदाजा हो जाए। बेसिकली वो इसके अंदर वही सिस्टम कर रहा है लेकिन उसमें थोड़ा मेथड चेंज कर रहा है, जिसके थ्रू उसका जो एक आंसर है वो एक इक्वल एक वैल्यू ऑफ गेम्स आ जाएंगी। वो क्या कह रहे हैं कि वो बी जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि ए जो है प्रॉफिट सीकर है और बी जो है वो अपना लॉस कम करना चाह रहा है। तो ए क्या करेगा, सबसे पहले हमने A1 की स्ट्रेटेजी और A2 की स्ट्रेटेजी लाइक -2 एंड 3 के दरमियान हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। अच्छा, जो इनकी वैल्यूज माइनस हो रही है जैसे -2 -3 है, तो हमने इसको माइनस करने के दौरान इनकी किसी भी किस्म की साइन को इग्नोर नहीं करना। तो हम -2 एंड -3 को जब आपस में इनकी सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑपोजिट साइड पे, लाइक उसके नीचे नहीं, ऑपोजिट साइड साइड पे B2 के नीचे आंसर इसका आ जाएगा। सॉरी थोड़ी सी होगी मुझे गलती।
-2 एंड -3 जो ये आंसर आ रहे हैं, ये वाले जो आपको शो हो रहे हैं A1 वाली साइड पे, इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पे A2 वाली साइड पे 5 की फॉर्म में आपको नजर आ रहा होगा, पिंक फॉर्म में। देन A2 का अगर हम करेंगे तो 3 -4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो जब इसका आंसर आएगा तो हमारा इस तरफ आंसर चला जाएगा 7 फॉर्म के अंदर, ठीक है। सेम लाइक अगर हमें बी का करना है तो बी का भी हम वैसे करेंगे -2 -3, या आप कर्सर की तरफ गौर कीजिएगा, जो आंसर आ रहा है वो हमारा ऑपोजिट साइड पे इस तरफ चला जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग फॉर्म में, और 3 -4 जो आंसर आ रहा है वो आपस में इनकी सॉल्व होकर आंसर इस तरफ चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो दोनों तरफ से आंसर आ रहे हैं, लाइक कॉलम फॉर्म में जो पिंक आंसर आ रहा है, जो A1 एंड A2 यानी स्ट्रेटजीज जो है बेसिकली उनका आंसर, और जो B1 B2 का आंसर आ रहा है, ये बेसिकली दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू ऑफ गेम, इनको प्लस करने के बाद इनकी वैल्यू ऑफ गेम आएगी, वो क्या आएगी, 12 गेम आएगी। याद रखना है हमने कि अगर ये वैल्यू ऑफ गेम सेम नहीं आ रही होंगी तो हम डिफरेंट मेथड के थ्रू करेंगे, और अगर ये वैल्यू ऑफ गेम जो यहाँ पे दोनों तरफ से जो अब्दुल्ला, पिंक फॉर्म, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ अब्दुल्ला। जी जी सर, आपके ये ना बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे ना, जब कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे जी जी पेन की ऑप्शन आती है, उसमें से पॉइंटर पिक कर लीजिए। सर एक्चुअली थोड़ी सी मुझे स्लाइड का इशू हो रहा था वो जल्दी में, तो वो मुझे पता नहीं है इतना सर पावर पॉइंट का इस नहीं तरह नहीं, से आप इसको राइट क्लिक करें यहाँ पे, जी सर, और इसमें पॉइंटर ऑप्शन में जाके जी जी सर, ठीक है सर। आप, नहीं इसमें पॉइंटर की ऑप्शन होगी। सर जी पॉइंटर की ऑप्शन है सर इसमें, सर वो स्लाइड की लेफ्ट डाउन बॉटम कॉर्नर में हाँ आता है। लेफ्ट डाउन बॉटम पे भी आती है, लेकिन इसके नहीं आ रही। चलो ठीक है, ओके आप कंटिन्यू करो, इसमें नहीं आ रही सॉरी है। एक्चुअली विंडो का कुछ प्रॉब्लम है। कंटिन्यू करो आप। तो इस तरह हमने बेसिकली क्या निकाली, वैल्यू ऑफ गेम निकाली। अब ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि वैल्यू ऑफ गेम में अगर वैल्यू ऑफ गेम दोनों तरफ से कॉलम एंड रो की तरफ से सेम आ रही है तब हम मिक्स नहीं यूज करेंगे, तब हम प्योर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया। सिंपल इज दैट हमारे पास वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी। और अगर वैल्यू ऑफ गेम सेम नहीं आ रही तब हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि आया कौन सा पॉइंट ऐसा है, कौन सा पॉइंट ऑफ एक्विलिब्रियम है जिनमें दोनों को अपना पॉइंट रीच हो गया, उनको अपना प्रॉफिट पता चल गया, उनको अपना लॉस पता चल गया। तो ये हमें वैल्यू ऑफ गेम का पता होना जरूरी होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है, गेम वैल्यू है, इसमें सिंपल जी है कि हम लोगों ने बेसिकली B1 B2 A1 A2 A2 क्या चाहता है, ए स्ट्रेटेजी क्या, ए कंपनी क्या चाहती है कि वो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बनाए। बी चाहती है कि आया वो कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी A1 की फॉलो करे जिससे उसका प्रॉफिट गेन हो। तो प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस। तो वो इसको चेक करने के लिए आया मेरी B1 स्ट्रेटेजी ज्यादा सूटेबल रहेगी, B2 ज्यादा सूटेबल रहेगी, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम करेगी, लाइक चांसेस ऑफ गेम करेगी। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग मेथड अगर आपको याद हो, अगर आपको थोड़ा सा एक माइंड में आए, तो वो यही था, हमने पढ़ा था कि हम -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, जो हमारे पास कर्सर आ रही है -2 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 5। तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम उसको डिवाइड कर देंगे हमारा वैल्यू ऑफ गेम जो है तो उसके साथ, तो हमारे पास लाइक स्ट्रेटेजी ए और स्ट्रेटेजी बी, A1 और A2 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम्स आ जाएगी, लाइक हमारे कितने % चांसेस है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ रही है। तो जब हम सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे तो हमारे पास सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, जिसमें से हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी बी को फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ ग्राफिकल मेथड। ये बहुत एक कॉन्सेप्ट बेस है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जरा इसमें पीछे बताएंगे कि 1/2 आंसर कैसे है इसका? सर बेसिकली इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में किया है, जब -2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया और उसको डिवाइड किया 12 के साथ, तो हमारे पास फर्दर जो एट द एंड आंसर आया, मैंने लाइक वो पूरा प्रोसेस नहीं लिखा, बस डायरेक्ट मैंने आंसर लिखा है 1/2 आंसर इसका मैंने। नहीं 1/2 आता नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 1/12 नहीं बन रहा सर आई थिंक 1/12 आता है। जी जी सर, एक्चुअली थोड़ा सा वो जल्दी में वो 1/12 हो गया, तो 1/2 जी 1/12 होगा शायद, हाँ जी। जी सर, आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली वो थोड़ा सा जल्दी के अंदर हो गया ऐसा। The next method is a graphical method. हमें ये कंफर्म पहले पता होना चाहिए कि A1 A2 क्या चीज है, B1 B2 B3 B4 एंड B5 क्या चीज है।
बेसिकली A1 A2 जो है वो ए की स्ट्रेटेजी है, जो कंपनी ए है या प्लेयर ए है उसकी वो स्ट्रेटेजीज है, एंड B1 B2 B3 B4 और B5 उस बी की स्ट्रेटेजीज है। अब बी को क्या पता मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो अच्छी है, जो मुझे करनी चाहिए, जो मुझे प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएगी। तो वो एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू अपना एक पॉइंट निकाल लेगी, मेजर कर लेगी, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ मेरी ये स्ट्रेटेजी जो है या ये वैल्यू ऑफ गेम जो है मेरे लिए सूटेबल रहेगी। इसमें हमने ये करना है सबसे पहले वही हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। तो उसमें क्या है कि A1 सबसे पहले अपनी मिनिमम स्ट्रेटेजी यूज करे, लाइक वो इन सब स्ट्रेटेजी में से जो रॉ फॉर्म में आपको ब्लू फॉर्म में नजर आ रही है इनमें सबसे मिनिमम को सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे येलो फॉर्म में -5 उसकी मिनिमम है। सेम लाइक A2 स्ट्रेटेजी जो ए की स्ट्रेटेजी है उसमें मिनिमम करेगा तो आपको -5 मिनिमम आ जाएगी। सेम लाइक B1 की जो आ रही है आपको ये कॉलम फॉर्म में आ रही है, इसमें वो सबसे पहले क्योंकि वो मैक्सिमम की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है तो वो मैक्सिमम सिलेक्ट करेगा, तो मैक्सिमम ये आ रही है। B2 का हमारे पास 5 आ रहा है, B3 का 0 है, B4 का 6 है एंड B5 का 8 है। तो अब क्योंकि हमें डेफिनेशन याद हो या हमें पॉइंट याद हो मिनी मैक्स एंड मैक्स मिन, तो क्योंकि ए मिनी मैक्स की स्ट्रेटेजी यूज कर तो ए ने पहले मिनिमम किया, अब वो मैक्सिमम करेगा। इन दोनों मैक्सिमम क्या है, क्योंकि दोनों -5 हैं तो इनमें से किसी को भी हम मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा मैक्सिमम जो है वो नीचे आपको -5 नजर आ रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम के अंदर हमने पहले मैक्सिमम सेलेक्ट किया, और बी ने जब मैक्सिमम करने के बाद जब मिनिमम सेलेक्ट करना है तो इनके अंदर मिनिमम हमारे पास क्या है 0 है, तो कॉलम फॉर्म में आपको नीचे 0 नजर आ रहा है। अब हमने बनाना ग्राफ, ये बहुत एक मजे की एक पॉइंट है जिसको करते हुए सभी को अच्छा लगता था। हमने बेसिकली अब ये बताना है कि आया कौन सी स्ट्रेटेजी प्रोबेबल है, चांसेस हैं जो बी को फॉलो करनी चाहिए। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें याद होगा कि हम देखते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब्दुल्ला, तो जी जी फरमाइए। सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन ये मुझे एक बात नहीं समझ लगी। जी ये जी जैसे आपने ये रो मैक्सिमम जो लिखा हुआ है -5 जी जी और कॉलम मिनी मैक्स लिखा हुआ है 0, जी जी तो कॉलम मिनी मैक्स का मतलब ये हुआ कि पहले हम मिनिमम चूज करेंगे और फिर देन से मैक्सिमम चूज करेंगे, जी जी। अब राइट? आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आपको ये थोड़ा याद हो जाना चाहिए, मैंने पहले भी स्टार्टिंग में कहा है, दोबारा बताता हूँ। हम जो एक कंपनी होती है जीरो सम के अंदर बताया जाता है कि एक कंपनी प्रॉफिट को देख रही होती है और दूसरे का वो लॉस होता है। तो जो प्रॉफिट सीकर कंपनी होती है वो मिनिमम स्ट्रेटेजी यूज करती है। मिनिमम ये कि पहले वो अपना मिनिमम प्रॉफिट देखती है कि मेरा मिनिमम प्रॉफिट क्या है, और जो मिनिमम सबसे मिनिमम प्रॉफिट होता है उसमें मैक्सिमम देखती है कि हाँ इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट जो लॉस है, क्योंकि मिनिमम होगा इसका मतलब उसका लॉस आ रहा है, तो उसमें से सबसे ज्यादा जो हाई लॉस होगा उसको वो सिलेक्ट कर लेगी, उसको मिनीमैक्स कहते हैं। और बी क्योंकि अपना लॉस डिक्रीज करना चाह रही है तो वो मैक्सिमम की स्ट्रेटेजी यूज करेगी। मैक्सिमम ये कि वो अपना पहले मैक्सिमम लॉस देखेगी, उसके बाद उसमें से मिनिमम चेक करके उसको आइडेंटिफाई कर देगी। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम का गेम है जिसको पहले हमें कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। तो जब हमारा कंसेप्ट इन दोनों नामों से क्लियर हो जाएगा तो हमें ये ग्राफ प्लॉट करने में या हमें ये प्रॉपर्टी जो हमें मैट्रिसेस बना रहे हैं इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट माय पॉइंट? ओके ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्राफ। अब मैं ग्राफ को आपको ये बता रहा था कि हम लोग ग्राफ बनाने के लिए हम देखते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज में से जो मिनिमम हमारा आ रहा है मिनिमैक्स और मैक्सिमम में, उसमें मिनिमम हमारा आ रहा है -5 और मैक्सिमम हमारा आ रहा है 8। तो हम उसी फॉर्म के अंदर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जहां पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपको दोबारा पीछे की तरफ लेकर जा रहा हूँ। हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्योंकि दो के दरमियान कंपेयर करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, एक पी चाहिए होगी। लाइक पी का मतलब है कि पहली स्ट्रेटेजी यानी स्ट्रेटेजी नंबर 1, और 1 - P1 का मतलब है स्ट्रेटेजी नंबर 2। एक फार्मूला के फॉर्म में 1 - P1 है, लाइक इसकी कोई हम लोग लॉजिकल कोई सी वैल्यू नहीं है, बट एक ग्राफ के फॉर्म में हमारे माइंड में लाने के लिए, डिफरेंस बनाने के लिए हमने इनके नाम रख दिए। नेक्स्ट चीज हमने वही वैसे ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ आपके सामने। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये कॉलम फॉर्म के अंदर ये देखें, सॉरी जी, रॉ फॉर्म के अंदर हमारे पास पहला B1 है, B2 B3 B4 समथिंग है, लेकिन हम सबसे पहले B1 को देखेंगे। B1 में सबसे पहले हमारे पास जो P के आगे है वैल्यू वो है -5, और 1 - P1 के आगे है 8। तो हम आगे आएंगे तो वही बात, P का हमारा था -5, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, और
1 माइनस P1 का था 8, तो हम इन दोनों को मार्क करके इनके दरमियान एक प्रॉपर लाइन स्केच कर देंगे। सेम लाइक हम करते चले जाएंगे तो हमारे पास एट द एंड ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगी। जब हम सारी B1 B2 B3 B4 B5 को हम करेंगे, हमारे पास एक ये फॉर्म कंसीडर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने उसमें क्योंकि बी ने प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो बी अपनी लोअर फॉर्म देखेगी, आया कौन सी चीज मुझे लॉस आ रहा है, मेरा लॉस पॉइंट क्या है जिसको मुझे खत्म करना चाहिए। तो वो अपनी लोअर इनवेलप लाइक लोअर साइड से, जो ये आपको लोअर साइड पर जो मैंने एरियाज मार्क किए में हैं, ये देखें, ये साइड जो एरिया मार्क है, इस एरिया को वो एक लाइक उसको मार्क कर देगा, वो उसको एक पॉइंट आउट कर देगा कि कौन से एजेस मेरे मिल रहे हैं। जब उन एजेस को वो मार्क करेगा, लाइक एक एज हमारा ये बन रहा है, एक एज हमारा ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, वो इन मार्क्स को जब एजेस को मार्क करेगा तो वो उनको वो नाम भी दे देगा। अब जब उन एजेस को नाम दे देगा तो वो जो एजेस बने होंगे, जो हमारा एरिया लोअर साइड एरिया बना होगा, उससे वो लोअर एनवेलप की फॉर्म में कवर्ड कर देगा, कलर्ड कर देगा, ताकि हमें क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन सा पार्ट हमारा लोअर एरिया मौजूद है। अब वो देखिएगा लोअर एरिया में सबसे टॉप एज जो क्लियर, जो सबसे टॉप एज आपस में मिल रहा है, वो कौन सा एज है, वो हमारा मैक्स एज है, जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एज जिसको हमने डी का नाम दिया था। और सबसे जो लोअर एज है वो हमारा आ रहा है -5 का। तो इससे वो अंदाजा लगा लेगा इजीली कि हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट है वो क्या है और मिनिमम पॉइंट वो क्या है, जो आ रहा है वो क्या पॉइंट है। अब जब मैक्स और मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ जाएगा तो वो वही मेथड यूज करेगा जो हमने एज इट इज यहाँ पे एक मेथड यूज किया था, ये वाला मेथड। इस मेथड के बाद उसके बाद क्लियरली अपना आंसर जो आ जाएगा, जो वैल्यू ऑफ गेम्स है वो आ जाएगी। अगर इसको भी मैं आइडेंटिफाई या इसको भी समझाना शुरू करूँ तो ये बहुत एक लेंथी पार्ट चला जाएगा। अभी हमारी प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक पार्ट पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथी हो जाएगा। इसलिए नाउ दैट्स ऑल। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट कायनात ज़हरा to explain further information with you. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Kainat Zahra, and I will explain about the details of the Nash equilibrium and their relationship with the business. So before starting it, I will go through first the history of the Nash equilibrium. In our game theory, the Nash equilibrium, named after the mathematician John Forbes Nash, is proposed the solution of the non-cooperative game involving 2 or more players, in which each player is assumed to know the equilibrium strategies of the other players, and no player has anything to gain by changing only his own strategy. The same idea was used in a particular application in 1938 by Antoine Augustin Carnot in his theory of the oligopoly. Next slide, please. Next slide, please. In the other words, basically there is a definition. The Nash equilibrium is a concept of the game theory where the optimal outcome of the game is the one where no player has an incentive to leave his chosen strategy after considering the opponent's choice. Next slide. The Nash equilibrium is a decision-making theorem within the game theory that states a player can achieve the desired outcome by not deviating from their initial strategy. In the Nash equilibrium, each player's strategy is optimal when considering the decision of other players. And a Nash equilibrium is important because it represents a scenario's outcome in which every participant wins because each one gets the outcome they desire. The Nash equilibrium is actually the game theory that states no player can increase his or her payoff by choosing a different actions given the other player's actions. Next slide. Here there is a coordination game that will show the Nash equilibrium, that show the 2 players game, basically the strategy game, that how they will make the optimal decision. Here we have 2 companies, suppose Honda and Toyota. The Honda company is deciding to build a plant, and they had no face interaction with the other company. So, but they have to take the best decision by predicting the best competitor's action for the company's profit.
For this, the Honda company will have two options to build a plant or not. In this table, it will show the profit. The numbers that are green in color shows the profit of Honda company, while the other shows the profit of Toyota company. Remember that the profit figures is in millions. So there, here the Honda company will see that if both companies would decide to build a plant, then they will both have share equal profits, that is 16 and 16. If the Honda company will not build the plant, but Toyota would decide to build it, so the profit of both companies will have big difference, that is 15 and 20, where 15 shows the Honda's profit and 20 is Toyota's profit. It means Toyota have much market share comparative to the Honda, which is not favorable for Honda company. The third condition is if Honda decides to build the plant but the Toyota does not, so that Honda will make 20 while Toyota will make 15 millions profit. It means Honda has captured the market space and it is favorable for Honda. So, and the last condition that if they both decide not to build a plant, that then their profit will be 18-18. As I discussed all the possible conditions, so Honda will supposed to reach the best or optimal strategy or decision for the company. Hence, the Honda will try the best by making a decision through Nash equilibrium. Suppose if Honda builds the plant by keeping in view that Toyota does not, and they choose 2015 figure, so Toyota must respond to it after knowing that. They will do the same. Through this, the Honda can go to worse condition. So, 2015 is not a correct to choose. If Honda would choose 1520, which means not to build the plant, and if other build it, so the Toyota will capture more market share. So it is not right option to choose for the Honda company. And if the if Honda choose 1818 as they both will not build the plant, remember that Honda is predicting all the strategies of the Toyota. Honda does not know but is trying to get the optimal strategy for the maximum profit. If the Honda choose 1818, that it will be worse, more riskier for Honda. So Honda will choose the first option, that is 1616, by assuming that Toyota will also build the plant. By doing this, they will both make the equal profits, and it indicates that's why that it indicates the Nash equilibrium. Next slide, please. Here there is a prisoner's dilemma history. Kainat, please can you tell me why 1818 is more risky for the Honda? बिकॉज सर ये प्रिडिक्ट हो रहा है, ये किसी को एक दूसरे की स्ट्रेटेजीज के बारे में एक्चुअल नहीं पता, इसलिए जो एक ये दोनों कंपनीज हैं वो आपस में जो इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए वो अपने बेस्ट स्ट्रेटेजी बना रही हैं, क्योंकि अगर एक बनाएगा और दूसरा भी ऑब्वियसली वो भी अपना प्रॉफिट बनाने के लिए वो भी दूसरा प्लांट बनाएगा, तो इसलिए उसने फर्स्ट स्ट्रेटेजी को ऑप्ट किया. राइट, थैंक यू. The prisoner's dilemma, one of the most famous game theories, was conceptualized by Merrill Flood and Melvin Drescher at the Rand Corporation in 1950. Next slide. A prisoner's dilemma is a situation where individual decision makers may always have an incentive to choose in a way that creates a less than optimal outcome for the individuals as a group. Prisoner's dilemma occur in many aspects of the economy. People have developed many methods of overcoming prisoner's dilemmas to choose better collective results despite apparently unfavorable individual incentives. Next slide. Here there is a situation, and it is a standard example that is used globally to understand the Nash equilibrium. Here there are two criminals. One is Ron, another is David. There are two options for both, to confess and not to confess. As the previous example we had, there are also four possibilities. The police kept them in prison separately, and they will the prisoner cannot communicate with each other, so the police will interrogate to each person separately. The police proposed four options to Ron. If they confess both, then they will remain 5 years in jail. That is 5-5. If the Ron does not confess while the other David does, then the Ron will remain in jail for 10 years. And if David will say for punishment, that indicates 0 year in jail. On the other side, if Ron confess while the David does not,
then he will save from punishment and David will remain in jail for 10 years. If they both confess, then they will remain in it for 1 year. Here there will be choice of Ron for the best decision to get rid of it. He will go with first, that is 5-5, as if he chose 10-0 option, which means he would be in jail for 10 years, while the other does not, which is not favorable for Ron, and the third option 0-10, which is also not favorable for David. So they both will try to reach the best option, that is 5-5. They will they will not choose remaining choices that is more risky for each other. So they are also they are as they are also non-interacting with each other, so they will both choose 5-5 by confessing their crimes. So it indicates the Nash equilibrium. Next slide. Multiple pure strategy Nash equilibrium will be very frequent in games with many pure strategies. This likely explains with few experimenters have run experiments with a large number of pure strategies. Example, John and Sam are registering for the new semester, and they both have option to choose either a finance course or a psychology course. They have only 30 seconds before registration's deadline, so they do not have time to communicate with each other. If John and Sam register for the same class, they both have opportunity to study for the exams together. And if they choose different classes, neither of them will get them any benefit. So if they both choose finance or psychology, then this is known as multiple Nash equilibria in this scenario. Next slide. The dominant strategy. In game theory, the dominant strategy is the course of action that results in the highest payoff for a player, regardless of what the other player does. It is because the dominant strategy is the optimal strategy unconditionally, that is, there is no dependence on the strategy the other player chooses. Dominant strategy equilibrium is reached when each player chooses their own dominant strategies. Example, let's consider two firms. Next slide. Let's consider the two firms A and B who have appointed a lawyer to resolve the contractual dispute of 100 million. If neither firm hires a lawyer, then then expected payoff is 50 million each. And if firm A hires a lawyer but firm B does not, the payoff to A increases to 70 million and that of B reduces to 25 million. Similarly, if firm B hires a lawyer but firm A does not, firm B gets 70 million and firm A 25 million. If both firms hire a lawyer, they each get 45 million. So hiring a lawyer is a dominant strategy for firm A, because if firm B hires a lawyer, it is better to hire the lawyer and get 45 million instead of not hiring and get only 25 million. And if firm B does not hire a lawyer and get 70 million instead of only 25 million, so it also follows that both firms will follow their dominant strategy and hire a lawyer. Because they both have take advantage for taking this decision. Next slide. The bottom line, by using simple methods of game theory, we can solve for what would be confusing array of the outcomes in a real world situation. Using game theory as a tool for financial analysis can be very helpful in sorting out potentially messy real world situations, from mergers to product releases. Basically, it refers to companies' earnings, profit, net income, or earning per share. Bottom line is also commonly used in reference to any actions that may increase or decrease the net earnings. Most companies improve their bottom lines through the two simultaneous methods, by increasing revenues or by improving efficiencies. So that's all from my side. I would like to call Aisha Wasi for further proceeding. Assalamualaikum. My name is Aisha Wasi, and today I am going to explain about the applications of the game theory. The two principal areas of application have been the war and the economics.
War means the war consists of the military. It has been applied to the tactical decisions making and studying global nuclear strategies. But in economics, game theory has been used in study competition for marketing, advertising, planning, and under uncertainty. The game theory can be applied to decide the best course in conflicting situations and business decisions. It has a wider possibilities with the help of computer large numbers of independent variables that can be considered with the mathematical accuracy. Next slide, please. The benefits of game theory. The main benefit of game theory is to formulate the alternative strategies to compete with one another in one same sense. It is an essential tool for decision making process according to the fluctuations in relevant content. The other benefits of the game theory is game theory provide a systematic quantitative approach for deciding the best strategy in competitive situations. It provides a framework for competitors' reaction to the firm's action. Next slide. It is helpful in handling the situation of independence of firm. Game theory is a management device which helps rational decision making. Next slide. Competitive games and strategies. Unlike games of chance such as roulette or coin flipping, the game and scenarios deal with the game theory required participant to consider what the others participant are thinking what they will do. Consequently, probability alone will not help decision makers in game theory scenarios as it does in some games. Next slide. Corporate games and strategies. Construct to zero games, cooperative games and scenarios involves decision makers with mutual interest and may make their decisions in a collaborative manners or where a cooperative strategies would yield the most benefits for all the parties involved. For examples, buyer and sellers are negotiating the price of a good or services. The other one is a non-cooperative games. Non-cooperative games consist of negotiating and enforcement of a binding contract are not possible. For example, two competing firms assuming the other's behavior determine independently pricing and advertising strategies to gain market share. Next slide. Game theory in the business world. The classical example of game theory in the business world arises when analyzing an economic environment characterized by an oligopoly. Oligopoly is described as the competition among few. For example, a cold drink industry. Competing companies have the option to accept the basic pricing structures agreed upon the other company to or to introduce a lower price schedule. Next slide. Following are the most common situations where the game theory become useful. The first one is the first price seal bid auction. First price seal bid auction is a type of auction. It also known as a blind auction. In this type of auction, bidders also simultaneously submit bids so that no bidders know the bid of any other participant. The highest bidders pay the price they submitted. The next is the bargaining activities. Game theory game uh, uh, bargaining activities. Bargain means negotiating the terms and conditions of the transactions.
Bargaining activities tells that games theory also comes into the play when bargaining takes place between or among parties. For example, include negotiation between management and the workers union as well as revenue sharing negotiations. Next, product decision. Basically, product decision consists of the business dealing whether to introduce a new product or may also use not use a game theory. This is a quintessential area where business can play games or play out scenarios using game theory. It is actually most frequently used by business in making decisions on whether to enter a market or exit it. Next, transaction between principal and agents. First of all, what is principal? A principal is a person who have authority to do his work or to take decisions about the business, and an agent is a person who work on the behalf of the principal. Principal appoints the agent. Principal's agent decisions can also apply the game theory when tackling compensation negotiation as well as incentives to suppliers and business partners. Next, supply chain decision. Supply chain is a system of organization, people, activities, information, and resources involved in supplying a product or a services to a consumer. A huge bulk of a decision made by a business involves the supply chain, and some of the more common decisions made involve capacity management, make or buy or build or outsource. Next, importance of applying game theory in the business. The first point is to obtain insight regarding the business competition. It means the best way to compete competitive is game theory is very effective to get the information about what are the rivals thinking because it is necessary to know the next move of the opponents. It is necessary to know their strategies and strength and weakness because it is helpful for the other company. The second point is improve internal decision and making process. By facing scenarios, companies become more confident in their decisions, and management is more inclined to have greater involvement in the internal decisions making. But business manager must be aware of game theory because it's not a management. Game theory is not a management tool that they can be used as a substitute for experience in business. The third is reduced risk. Risk analysis make use of game of theory in determining the optimal price strategies, expected market, expected income, and numbers of customers, while obtaining information about the company, the market, competitors, and technologies in use, among others. Next. Thank you. That's all from my side. Now, Abdullah will conclude the presentation. Thank you so much. Now I'm here to conclude all information about the game theory. So basically, the conclusion is the game theory is a formal study of conflicts and cooperation between intelligent, rational decision makers. It has been a powerful analytic tool to help us understand the phenomena that can be observed when decision makers interact. So the game theory is model have become much powerful and useful. It has been successfully applied to discipline including the economics, sociology, psychologically, and etc. Game theory has helpful to reconstruct to different ideas, norms, and values, and etc. Thank you. Now that's all. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला। आप काइंडली अपनी एक पिछली स्लाइड पे आइएगा, वहां पे अच्छा मुझसे पहले कोई और क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। यस सर। अब्दुल्ला
जी इन द जी मीनवाइल जी कोई एक स्टूडेंट है जो अटेंडेंस के बाद आए हैं, कौन आए हैं जी? शहरोज जी बाबर, यस, ओके, ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला, इसमें आपने बात कही, इंडस्ट्री की बात पे सारा कुछ बताया, लेकिन आपने फोकस किया, सॉरी वॉइस बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो फोकस किया, आपका फोकस था मार्केट स्ट्रक्चर जो था वो था ओलिगोपोली। सो क्या गेम थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन में काम नहीं करती? जी जी, आपको ओलिगोपोली के मुतालिक जो डिटेल बताएंगी वो कायनात बताएंगी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बता दूं तो बेसिकली ओलिगोपोली का भी हमारी गेम थ्योरी से लिंक है, बट नाउ वी आर हियर टू डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो हमें बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए गेम थ्योरी किस कंसेप्ट पे काम कर रही है, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है गेम थ्योरी के बारे में कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं ये गेम भी वही चीज़ है जैसे प्लेयर्स के दरमियान होती है जैसे हॉकी एंड क्रिकेट। मैंने पहले ही आइडेंटिफाई किया था कि गेम थ्योरी अगर हम तो गेम के फॉर्म में देखें तब हमें इजी टू अंडरस्टैंड होगा, बट हमने यहाँ पे इसको एज अ डिसीजन मेकर फॉर्म में देखना है। डिसीजन मेकर फॉर्म में ओलिगोपोली फॉर्म में भी हो जाएगी और इसको डिसीजन मेकिंग लाइक हर फॉर्म में इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट मार्केट में भी उसी तरह से वर्क करेगी। जी ठीक। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा एक ये है कि हम लोग इसमें गेम थ्योरी में बस एक चीज को फोकस करें, अगर सपोज लाइक एक चीज मैंने आपकी देखी जब वो होंडा और टोयोटा वाली एग्जांपल में मैंने देखी, उसमें ये था कि अगर वो प्लांट करते हैं तो उनको एक जितना प्रॉफिट है, अगर वो प्लांट नहीं करते हैं तो उनका सेम प्रॉफिट है, अगर एक प्लांट करता है तो दूसरे को लॉस है। ओके, सो उसमें हम लोग इस चीज को मे बी हम इग्नोर कर रहे हैं कि अगर दोनों प्लांट करते हैं और एक इनोवेशन ले आता है तो उसको तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा? जी जी, अच्छा मैंने आपने पहले अगर लेक्चर गौर से सुना हो तो आपने दो चीजें मैंने कैटेगरीज का डिफाइन किया था, जीरो सम एंड नॉन जीरो सम। जीरो सम में जैसे मैंने बताया था कि जीरो सम में एक का प्रॉफिट होता है तो दूसरे का लॉस होता है। दूसरे में नॉन जीरो सम का मतलब होता है कि अगर एक का प्रॉफिट हो रहा है जरूरी नहीं दूसरे का लॉस ही हो, प्रॉफिट हो रहा है बट लॉस होना जरूरी नहीं कि लॉस भी हो। तो ये दोनों डेफिनेशन अगर आपने गौर से सुनी हो तो आपको इसका आंसर मिलेगा। बाकी सब क्लियर आंसर जो है वो कायनात ज़हरा देंगे बिकॉज ये उनका रेलेवेंट पार्ट था। आप क्वेश्चन पूछो, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि दोनों जो कंपनीज हैं वो अपना प्लांट बनाएंगी, उनको 15 मिलियन प्रॉफिट होगा। ओके, बट हाँ, अगर एक कंपनी इनोवेशन ले आती है तो उसमें तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा उस कंपनी को, देन व्हाट? तो वो जब इनोवेशन करेगी तो वो स्ट्रेटेजी बनाएगी और अच्छा, सामने वाला जो अगर मैं इसका जवाब दूं, मैं इनको सेटिस्फाई जी करता सर। हूँ। ये बेटा उस स्लाइड को भी ओपन कर लीजिएगा। ये जो बात की है इन्होंने इनोवेशन की ही की है कि जो नया प्लांट बिल्ड किया जा रहा है वो एक इनोवेशन ही है, जो कंपनी नई चीज करने जा रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम नहीं करते और दूसरी कंपनी कर देती है। मसलन देखिए, टोयोटा कर यस देती है, होंडा सर, ने नहीं किया, तो टोयोटा को तो 20 मिलियन का प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन होंडा को 15 का होगा। अच्छा, होंडा नहीं करती और टोयोटा करती है तो वो ऑपोजिट हो जाएगा। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों कंपनी चाहती हैं कि वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। दोनों ने ये नहीं सोचा कि अगर हम दोनों ही नहीं करते तो हम ज्यादा प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि उस सूरत में उनकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगी, R&D की कॉस्ट भी बच जाएगी और अपना मार्केट शेयर भी इंजॉय करेंगे। लेकिन उनको तो नहीं पता दूसरी कंपनी क्या करेगी। तो दैट्स वाई दोनों कंपनी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वही कंसिडर कर रही है कि शायद दूसरी कंपनी ना करे, और अगर दूसरी कंपनी ने कर भी लिया तो भी हम कुछ बेहतर कंडीशन में होंगे। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हम कम प्रॉफिट में चले जाएंगे और दूसरी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में चली जाएगी। गॉट इट? ओके सर, यस सर। बेसिकली वो कर ही यस इनोवेशन है, मैं सर। बस ये मेरा पॉइंट था जो अभी क्लियर हुआ। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? सर जो कंपनी पहले इनोवेशन को इम्प्लीमेंट कर देगी प्रॉफिट तो डेफिनेटली उसको ही होगा ना मार्केट में। यहाँ पे ही उन्होंने कहा ना कि दोनों एक ही टाइम पे, आप देखो ना, अब होंडा और टोयोटा, अब तो उनका जो कंपटीशन है बहुत अजीब सा हो गया ना।
वरना एक टाइम ये था कि जब इनोवेशन होती थी, दोनों की इनोवेशन एक ही टाइम पे होती थी। यस सर। ठीक है, वो एक ही टाइम पे नया मॉडल लॉन्च करती थी। अब तो उनके नए मॉडल क्या लॉन्च होते हैं, वो बस ऐसे ही फेस अपलिफ्ट करते हैं। यानी कि जो लास्ट टेक्नोलॉजी इंजन के अंदर आई हुई है वो सिटी में आई है 2009 में, और GLI के अंदर आई है 2011 या 12 में। ठीक है, तो वो 2011 या 12 में वो उन्होंने अब किया, तो उनके पास अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वो तमाम मैटर्स भी देखने होते हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं। ये तो बहुत लंबी गेम है, लेकिन आपको जैसे इन्होंने भी बताया कि ओलिगोपोली, यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तानी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें ओलिगोपोली मौजूद है। ठीक है, कि लिमिटेड प्लेयर्स हैं और लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन की जब आप बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन में गेम थ्योरी अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि परफेक्ट कंपटीशन में तमाम जो फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, और जो कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। यस सर, जैसे मैंने सर लिमिटेशंस के अंदर ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उस सूरत में जब बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर्स हो जाएंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई, काइंडली अटेंडेंस कर दें मेरी। सर अगर आप कहें तो मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं पीछे से। जी, मैं एक और क्वेश्चन अभी अब्दुल्ला आपसे पूछना चाहता हूं। आप पिछली स्लाइड पे जाइएगा। सर आवाज आ रही है? जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी वैसे अर्शद, बताइए। सर, मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर, मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें। आप कितने बजे आए थे? जी सर। कितने बजे आए थे आप? अटेंडेंस मार्क नहीं हुई मेरी, काइंडली। वैसे आप कितने बजे आए थे? सर मैं 45 पे शायद आ गया सर। 9:45 पे? तब तो अटेंडेंस भी नहीं हुई थी यार। सर 45 पे। बेटा 9:45 पे तो अटेंडेंस भी नहीं हुई थी। नहीं सर, तब होगी भी 45 पे। मुझे तो नहीं लगता। सर 45 6 इस तक में आ चुका तो था। 9:30 पे आते हुए आपको क्या ज्वाइन मसला कर होता चुका है? था। 9:30 पे आते हुए क्या मसला होता है? सर होगी 45 6 तक होगी। बेटा 9:30 पे आते हुए क्या मसला होता है? सर मैं ब्रेक में सर लेफ्ट सर सॉरी वो सर लेट हो गया सर, उठ नहीं सका। सर नेक्स्ट क्लास में पूरे टाइम पे आऊंगा। बेटा ये तो आपका बाकायदगी से चलेगा, इसका तो आज हम लेट कुछ हो नहीं गया कर सर सकते। गलती। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप आदि मुजरिम हो। अब अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में घर से उठने में आपको तकलीफ है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? सर फर्स्ट टाइम लेट हुआ। बेटा फर्स्ट टाइम नहीं है, सॉरी सर, मुझे याद है इससे पहले भी आप हुए हैं। नेक्स्ट। अब देखिए सईदा उम्मे ऐमन, रिमशा फयाज ये क्लास ड्रॉप कर गई हुई हैं। सर सईदा उम्मे का ना इंटरनेट कनेक्शन चला गया था इसीलिए। बेटा पिछले सर मैं 12 तो प्रेजेंट हूँ लेक्चर क्लास में। कौन सईदा उम्मे ऐमन? जी कौन कौन प्रेजेंट है? जी बेटा कौन प्रेजेंट है? सर रिमशा बोली थी। रिमशा फयाज या रिमशा बाबर? सर रिमशा रिमशा फयाज बोली थी। फयाज सर। रिमशा फयाज मुझे लिस्ट में नजर आ रही है। नहीं, रिमशा फयाज यू देयर?
ये कैसे हो गया है कि वो लिस्ट में भी नहीं है? बेटा रिमशा वापस बोल रही होंगी। रिमशा फियाज तो लिस्ट में नहीं है। नो सर, नहीं सर, वो रिक्शा से आज ही बोले। सर रिमशा फिर प्याज चली गई है। बोली थी। मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? बेटा मुझे तो रिमशा नहीं नजर आई। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा इससे पिछली स्लाइड पे आइएगा जहाँ पे वो अपना थे। अपना अब्दुल्ला बेटा बैक कीजिएगा स्लाइड्स। बेटा आपने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनाई, इनको अपलोड कर दीजिएगा यहाँ पे। जी एक तो सर। जब बैक कीजिएगा, सर जी जी। क्लिक करें ये जरा इन्हें, मैं देखना चाहता हूँ कौन सी स्लाइड पे ये जिस पे आपने प्लस किया था, इन्हें प्लस किया था 5 और 7 आंसर आया था। जी सर। जी सर। यहाँ पे आपने कहा था कि हम माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे। जी सर मैं जी सर। सर अच्छा इसमें ये अब है कि एक्चुअली इसका आंसर मैं बताना भूल गया था। वो ये होता है कि जब हम इसी कैलकुलेशन को तब हम इसको माइनस को इग्नोर नहीं करते, लेकिन जब हमारा सोल्यूशन आंसर आ जाता है तब हो सकता है कि आंसर माइनस में भी आए, तब हम उसको जब उसके रॉ फॉर्म एंड कॉलम फॉर्म में लिखेंगे तब हम माइनस उनके साइन उनको इग्नोर कर देंगे। अच्छा -2 एंड -3 इज -5, तो जी -5 आया सब तो हमने -5 इग्नोर को कर यहाँ देंगे। लिखते हुए +5 कर दिया। जी सर इसको इग्नोर कर देंगे हम लोग, साइन को इग्नोर कर देंगे। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तब इग्नोर नहीं करेंगे। तब एज इट इज लाइक हमने -4 कर रहे हैं, जैसे हम A2 की रॉ पर देखें तो वो है 3 -4, तब हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन जब लेकिन मुझे आंसर एक आ बात जाए तब। बताइए, जी मुझे एक सर। बात बताइए। अच्छा 3 -4 प्लस हो जाएगा, ठीक है, वो +7 हो जाएगा, ठीक है। जी ओके 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 ओके, डन। अब बेटा इनको अपलोड कीजिएगा। मुझे एक सवाल ये बताइए, 14 अप्रैल को कुछ बच्चों ने अपनी असाइनमेंट्स अपलोड की हुई हैं यहाँ पे टीम्स के अंदर। ये टीम्स पे अपलोड करने को तो मैंने नहीं कहा था, ये कहाँ पे अपलोड करनी थी? सर आपने टीम से सर कहा वो जो था। 8 क्वेश्चन वाली असाइनमेंट थी। नहीं, टीम्स के ऊपर फाइल्स के अंदर अपलोड हुई हैं कुछ। नहीं यस सर, फाइल्स वो के अंदर टर्न नहीं वही करनी थी, और वो फाइल्स के अंदर असाइनमेंट में आपने करनी थी आपको, असाइनमेंट के अंदर उन्होंने चैट माय पे वर्क अपलोड कर दी करनी थी। सर वो मैंने गलती से कर दी थी अपलोड। बेटा मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ सब, मैं किसी की यहाँ पे चेक नहीं कर रहा असाइनमेंट। ओके यस सर, वो फिर बाद में मैंने उधर ही टीम में अपलोड कर दी थी। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी प्लीज पूछिए पूछिए। अच्छा आप में से मुझे कोई ये बताना पसंद करेगा कि हमने बेसिकली जो मिनिमैक्स एंड मैक्सिमम स्ट्रेटेजी, मैं वही दोबारा स्लाइड पे चला जाता हूँ, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आया बी क्यों मैक्सिमम स्ट्रेटेजी यूज़ करता है और ए मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी क्यों यूज़ करता है। इसको थोड़ा सा मुझे क्लियर करके बताया कि क्यों यूज़ हो रही है। भैया नहीं बताना। रिपीट करना क्वेश्चन जरा, एक मिनट रिपीट करना प्लीज। आया क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे दो प्लेयर्स होते हैं, गेम इज द नेम ऑफ प्लेयर्स, तो जो प्लेयर्स हैं उसमें प्लेयर ए जो है वो क्यों मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और प्लेयर बी क्यों मैक्सिमम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। बिकॉज ए अपना प्रॉफिट देख रहा है और ए अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने को देख रहा है, बी अपना जो है लॉस रिड्यूस करने को देख रहा है। कंसेप्ट मुझे बताएं, स्लाइड में तो ये चीज क्लियर मेंशन है, मुझे कंसेप्ट बताएं आया क्यों यूज कर रहे हो। मैंने बहुत डिटेल में बताया था। जी बेटा जवाब दीजिए। सर जी बेटा। सर मैं पूरी क्लास में प्रेजेंट थी, वो मेरा बीच में नेट चला गया था। अच्छा इनकी बात का जवाब दें फिर आपकी अटेंडेंस लगाते हैं। सॉरी सर, मैंने इनका सवाल नहीं सुना, दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ये चीज़ कही थी कि प्लेयर ए जो है वो मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है और प्लेयर बी मैक्सिमम स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है। स्लाइड में जो लिखा हुआ है इसका मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कंसेप्ट पे आंसर चाहिए कि आया ये क्यों दोनों स्ट्रेटेजी अलग अलग यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि मिनिमैक्स और मैक्सिमम प्रिंसिपली ये होता है कि हम लोग इसको मिक्स नहीं करते, दोनों में से जो प्लेयर है ना वो इंडिविजुअल चूज करता है, जो टू प्रेफरेंसेस होते हैं। तो क्या कहते हैं, जब अगर प्लेयर ए जो है इंक्रीज करे प्रॉफिट तो अपने
तो जो प्लेयर बी है वो ये देख रहा है कि ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, तो मैं अपने उससे ज्यादा करूं और अपने जो लॉस है उसको डिक्रीज करके उससे ज्यादा आगे जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनवर्स रिलेशन है कि एक का अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है दूसरी बिकॉज आपने कहा था कि अगर ए 10 बोतलें सेल कर रहा है एग्जैक्टली। वो बी का 10 बोतलों का लॉस अच्छा, है। ऐसे करते हैं अब्दुल अब्दुल, हम इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, तो ओके आप प्लीज इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसको एंड करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच बेटा।